Okay, ठीक है. Okay, yes, so let us start your snap review for heat transfer. So first of all, just tell me, how do you define the different modes? Sorry, sir. How Voice. do you define the modes? Modes को हम कैसे define करते हैं? Mode of heat transfer को. There are three modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. Sir, in conduction, sir, it generally takes place in that solid, in which the molecules vibrate at their mean position and transfer heat by vibration. In case of convection, in case of convection, the molecule diffuses from one place to another uh, by taking energy with themselves. In case of radiation, there is no medium required, and there the mode of the energy transfer in the form of electromagnetic waves. Okay, ठीक है. अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि कंडक्शन में फॉर लोग के कुछ assumptions बताओ जरा मुझे. Conduction for a lowercase vector. हाँ, assumptions बताओ. So Q equal to minus Ka dt over dx. Assumptions मुझे statement फॉर्मूला नहीं चाहिए इसका. अच्छा, Assumptions. sir, in this the K we take is an isotropic we take in the form of isotropic, and there is a the the heat transfer take place in a one direction. We take one और second assumption, and third assumption is that K did not changes with the temperature. Uh, is not constant. And fourth assumption we take uh, there is no heat generation and accumulation. We take a steady state. ठीक है. लेट अस सपोज अगर आपके पास एक कंपोजिट स्लैब है जो कि 3 डिफरेंट मटेरियल से बनी है. फर्स्ट स्लैब है Yes, एल्यूमिनियम की, सेकंड है yes, sir. स्टील की, और थर्ड है आपके पास यहाँ पे आपका पास सिंपल लेट अस से कॉपर की. Yes, sir. एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर. Yes, sir. ठीक है. आपके Yes, पास यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है. yes, sir. और आपके पास यहाँ पे जो स्टील है, स्टील के लिए Yes, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है. yes, ठीक sir. है. तो इस केस में आपके पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर जब होगा फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कॉपर साइड, तो टेम्परेचर प्रोफाइल Yes, sir. कैसे बनेगा? ड्रॉ करके दिखाओ. सर टेम्परेचर सर के मतलब के सर टेम्परेचर के साथ मतलब पॉजिटिवली आपके मतलब. नहीं, मतलब आपके पास एक साइड से दूसरी साइड में हीट ट्रांसफर हो रहा है सिंपली, तो उस केस में यस टेम्परेचर सर. प्रोफाइल कैसे बनना चाहिए? सर अगर सर के इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर इज द आपके केस पास और के इज डिक्रीजिंग विद द ये टेम्परेचर. आपको अज्यूम करना है. मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ कि एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए जो कंडक्टिविटी है यस वो सर. वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, और आपके पास स्टील के लिए कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रही. ओके सर, दिस विल बी द प्रोफाइल. अच्छा, एक्सप्लेन करो जरा. आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा क्यों बना हुआ है? Sir, because if we are taking the case of K is increasing with the temperature, then the Q equal to minus Ka dt over dx. So if K is increasing with the temperature and Q is constant, and dt over dx will decrease. So we are having the slope that is uh, K is increasing. Yes, sir. Now in this direction, temperature थोड़ा is decreasing. कैमरा थोड़ा पीछे करो, कैमरा थोड़ा पीछे करो. Yes, sir. हाँ, ठीक है. Sir, if we are going towards the right, then temperature is decreasing. So if then K will decrease if we are going to ओके. right. Then dt over dx will increase. So we are having increasing slope towards this. And if we are then it is a constant. Then K is constant in steel case, and again the same case in copper. The dt over dx gradient will increase. Slope will increase. So we ओके, are having ठीक है. different. लेट अस सपोज अगर आपके पास यहाँ पे जो सेंटर वाली स्टील है मेरे पास, स्टील जो Yes, स्लैब sir. है बीच में, यहाँ पे हीट जनरेशन अगर होता, यूनिफॉर्मली अगर हीट जनरेट हो रही है स्टील वाली स्लैब में, तो उस केस में टेम्परेचर Yes, sir. प्रोफाइल कैसे बनेगा? Heat is generating. सेंटर पे अगर हीट जनरेशन हो रही है तो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनेगा?
Sir, if there is no heat transfer taking place from T1 to T4 means right direction में transfer हो रहा है. आपके नहीं, तब उस हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ सिंपली आपके पास हीट जनरेशन हो रही है सेंटर So then में। uh, this will be like that. अच्छा, ये आपके पास जो ग्राफ है ये आपने इसी वे में क्यों बनाया हुआ है? ये आपके पास यहाँ पे Sir, ग्राफ है। चलो ठीक है, yes sir, एल्यूमिनियम और कॉपर ठीक है। सेंटर पे ये ग्राफ आपने ऐसे ही क्यों बनाया? ये आपके पास यहाँ पे सेंटर से टुवर्ड लेफ्ट और राइट yes डिक्रीजिंग sir. स्लोप का क्यों नहीं है? डिक्रीजिंग स्लोप का फ्रॉम सेंटर टूवर्ड लेफ्ट और राइट। Sir, because there will be it will the maximum at the temperature will be maximum at the origin where the heat generation is taking place at the वो center. तो ठीक है, वो तो ठीक है। And, आपके पास यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं वो बता देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? yes sir, ओके, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सेंटर में जो आपने ऐसा दिखा रखा है मुझे इस तरह से, ठीक है, ये yes ऐसा sir. क्यों दिखाया हुआ आपने? ये आपके पास ऐसे क्यों नहीं बना? Sir, because ऐस- there is a uh, हम्म, बताओ। सर यहाँ पे सर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी सर मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे दिस कंटिन्यूटी। नहीं नहीं डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा एट द पॉइंट ऑफ टी मैक्सिम अच्छा क्योंकि ठीक सर है, टेम्परेचर पे. ठीक है। लेट अस सपोज अगर आपके पास दो मेटेलिक बार है, ठीक है, दो यस मेटेलिक रोड है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, जो कि एक के ऊपर एक यस वर्टिकली प्लेस्ड है। बना के दिखाओ जरा डायग्राम। वर्टिकली टू प्लेस्ड है मेटेलिक एक के बोर्ड. ऊपर। टू मेटेलिक बार है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, जो कि एक के ऊपर एक प्लेस्ड है वर्टिकली, ठीक है। उस केस में, हाँ, सेंटर पे अगर मैं आपके पास यहाँ पे वेल्डिंग करके इन दोनों को ज्वाइन करना चाहूँ तो कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर मुझे रिक्वायर्ड होगा? सेंटर से अगर आप यहाँ पे यस ज्वाइन करना चाहते हो, वेल्डिंग करना चाहते हो, तो हमारे पास कितने अमाउंट यस ऑफ सर. हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आप अज्यूम कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर टी इंफिनिटी है, और लेट अस से रोड का टेम्परेचर T1 है। इसका बॉटम वाली रोड का टेम्परेचर T1 है. दोनों रोड का टेम्परेचर सेम है टी। लेट अस सपोज ठीक है मेल्टिंग ठीक है. टेम्परेचर टी आपके पास है मटेरियल का, मेटल का, तो उस केस में आपके यस पास सर. यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होगी? सोच के बताना। Q इक्वल टू mCp T माइनस T नॉट मतलब T एटमोसफेयर. आर यू श्योर? सही है, देख लो। यस सर. ओके, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे नसल नंबर क्या होता है? The Nusselt number is the ratio of the convection heat transfer to the conduction heat transfer. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? इसका आपने रेशियो कर दिया, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वैसे ये? Sir,
it tells us about that how much convection heat transfer taking place with respect to the conduction heat transfer. विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स में हम एक डिजाइनिंग के लिए इफेक्टिवनेस एंटीटी मेथड यूज करते हैं, पता है उसका आपको कुछ? NTU, हाँ, इफेक्टिवनेस yes एंटीटी sir. मेथड क्या होता है, कैसे आप डिजाइनिंग करते हो उस बेसिस पे? So NTU is a number of transfer units, sir. In this case, uh, sir, counter और नहीं, डिजाइनिंग कैसे co-current. करते हैं? डिजाइनिंग कैसे करते हैं? लेट अस सपोज आप डिजाइन करना चाहते हो हीट एक्सचेंजर को, तो कैसे करोगे उसके एनटीयू मेथड से? तो सर अगर हमको सर टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया होगा तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करो। yes sir. अजम्पशंस डिफाइन करो, क्या आप अज्यूम कर रहे हो, तो आप कैसे डिजाइनिंग करोगे? पता है आपको डिजाइनिंग कैसे करते हैं? सर मतलब इससे सर हम हम्म, अ, मतलब एंटी जनरली यूज होता है सर कोई वेरिएबल फाइंड करने के लिए, जैसे हम अगर हमको टेम्परेचर एक टेम्परेचर गिवन नहीं है, अगर हमको हम्म, ओवरऑल हीट ट्रांसफर को हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस हम्म। या कोफिशिएंट या एरिया गिवन है तो वहां से सर टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे अगर एनटी की वैल्यू हमारे पास है तो। और काउंटर करंट के लिए और को करंट के लिए दो फॉर्मूले होते हैं सर, वहां से सर वो निकाल सकते हैं अच्छा उस ठीक है। वैल्यू। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एनटीयू और हमारे पास एलएमटीडी मेथड हम यूज करते हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है? तो क्यों? LMTD और NTU में से हाँ, सर NTU बेटर ज्यादा है। एनटीयू ज्यादा बेटर है, क्यों, किस बेसिस पे कह रहे हो? सर LMTD के लिए सर हमको सर अगर लॉग मीन टेम्परेचर डिफाइन करने हैं सर हमको चारों टेम्परेचर चाहिए होते हैं सर, टी इन टी आउट। और हम्म, उस और NTU के केस में हमको सर अ, हम्म। सर अगर अपने पास तीन टेम्परेचर भी है तो सर हम उसे निकाल सकते हैं NTU से। अच्छा ठीक है। इफेक्टिवनेस कैसे डिफाइन करोगे हीट एक्सचेंजर की? सर इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज सर actual heat transfer taking place or maximum heat transfer that can be that can be take place, मतलब एक्चुअल हीट ट्रांसफर टेक प्लेस डिवाइडेड बाय maximum heat transfer that can be take place. मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कैसे निकालते हैं? Sir, we take if we are having see if सर इन नीचे वाले सर डिनोमिनेटर में हम काउंटर करंट का मैक्सिमम हीट ट्रांसफर लेते हैं सर। बताओ कैसे कैलकुलेट करो जरा, कैसे करोगे? एंड मान लो अगर मैं आपके पास पैरेलल फ्लो का निकालना चाहता हूँ, तो मैं काउंटर फ्लो को क्यों कंसिडर करूंगा वहां पे? सर बिकॉज सर उस हीट उस दोनों के टेम्परेचर की डिफरेंस में सर मैक्सिमम तो काउंटर फ्लो के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, को करंट में नहीं हो पाएगा सर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। चलो, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, ओके। नीरज, लेट मी प्रोवाइड माय फीडबैक। देखो, आपके पास हीट एक्सचेंजर वाला टॉपिक है, वो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं है। ठीक है, उसमें यस जो सर। भी एलएम डिजाइनिंग की बात करो तो एक बार अच्छे से सोचो करना। और आपका जो फर्स्ट टेस्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कंपोजिट स्लैब वाला, उसमें एक चीज का ध्यान रखना। जब मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ एल्यूमिनियम स्टील और स्लैब, उसमें आपके अपनी समझ के अकॉर्डिंग तो आप जो बनाए बिल्कुल ठीक बनाया है, कोई इशू नहीं था। लेकिन जो एल्यूमिनियम वो एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास होता है। एल्यूमिनियम के केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसपास यहाँ पे होती है। जैसे मेटल में अगर आप देखोगे तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और यूरेनियम के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो उस केस में जो ग्राफ जो आप मतलब बना रहे हो वो गलत बना रहे हो एल्यूमिनियम के केस सर में। एल्यूमिनियम वहाँ के पे केस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है सर, मतलब टेम्परेचर हाँ, कंडक्टिविटी।
हाँ, ओके दोनों आपका डायरेक्टली पहुंचेगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज वहाँ पे करेगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ओके मेटल्स में ऐसा नहीं होता, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उसके बाद जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें दो वर्टिकल बार थी, उसका आपने आंसर गलत लिखा है, वो वैसे सॉल्व नहीं होगा। उसके एक बार अच्छे से देखो जरा, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप हीट ट्रांसफर को वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो ऐसा कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है। ओके, तो इन सर चीजों ये का थोड़ा सा सर ध्यान ये से देखना एक बार। हम्म, सर ये आपने बोलो। सर जो ग्राफ बनवाया था क्यू जनरेशन वाला, वो आपने ये पूछा सही था था, कि मतलब। ये सही था। उसमें जो हमने आंसर दिया था ना कि वैसा क्यों नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा चलो सही था, लेकिन इतना सही आंसर नहीं था। उसको एक बार मैथमेटिकल इक्वेशन से देखना कि आपके पास वहाँ पे ग्राफ जो है, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया था, वैसा क्यों नहीं बन सकता। इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सा केस था। ओके। और सर ओके नहीं। ये वाला सर, वेल्डिंग वाला सर। हाँ, इसमें तो आप खुद से करो, आप बस यहाँ पे कैसे निकालोगे, ट्राई करो, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँ। ओके। ओके सर। ओके। ओके। ओके।